Hello friends, let us continue our history optional modern India class, right? Modern Indian history पढ़ रहे हैं. Today is the lecture 2, right, in this series. और आज हमें पढ़ना है historiography of the modern Indian history. So सबसे पहला सवाल कि historiography होता क्या? What is historiography? So if you guys have attended my previous sessions, so आप लोग जानते हैं, especially in ancient, in medieval also, not just for optionals but also for GS, in GS classes also, मैंने ये point आपको explain किया है that जब similar events हैं हमारे पास, same archaeological evidences हैं, same हमारे पास literary evidences हैं, तो फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्यों निकल जाती हैं, राइट? सो द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ सिमिलर इवेंट्स, सेम इवेंट्स, right? Different interpretations of same events having same literary and archaeological sources, especially in case of ancient and medieval, that is what is historiography, right? The way of writing history according to the different schools of thought. Now these different school of thought, they have their own prejudices, they have their own agendas, they have their own subjectiveness. So on the basis of their own prejudices, own agendas, own subjectiveness, they have created history, they have created different versions of history for same events. Like for example, in modern Indian history, if we talk about colonialism, right? Or if we talk about, like in the previous session, how we have divided, or what strategy that we have discussed, that we will divide modern Indian history into 4 parts, right? First we will study the 18th century India, then we'll study the colonialism, history of colonialism or the rise of British colonialism, then we'll discuss the Indian nationalism and the freedom struggle, and finally we will discuss the post-independence era, right? So these are the 4 parts in which we have divided Indian history or modern Indian history or the study of modern Indian history, right? And 18th century also we have divided this into first half and the second half of the 18th century. Now, if the events are the same, like in the first half of the 18th century, there is a disintegration of Mughal Empire and rise of regional states. So this is the event. Then how come there are different interpretations of this event? So that different interpretations of this event is done by different schools of thought. And when different schools of thought, based on their own prejudices, based on their own agendas, own subjectivity, their own understanding, their own motives, when they create different versions of same events, that is known as historiography, right? Historiography is simply the way of writing history. In this case, the different ways of writing history. So for modern Indian history, we'll try to understand, first of all, we'll try to understand the imperialistic school. Imperialistic school of thought, which will contain further 2. One is Cambridge, or you can also call it the old Cambridge, and then is the new Cambridge. New Cambridge school of thought. Then second, in reaction to the Cambridge school of thought, निकल कर आएगा हमें देखने को मिलेगा, that will be the nationalist school of thought. In reaction to the nationalist school of thought, हमें देखने को मिलेगा the Marxist school of thought. In reaction to Marxist school of thought, then we'll find another school of thought, that is the new Cambridge school of thought. So this will be the timeline, and I'll try to explain the school of thoughts or historiography in this fashion. First we'll understand the Cambridge school of thought, then its reaction the nationalist school of thought, then its reaction the Marxist school of thought, then its subsequent reaction the Cambridge school of thought. Combinedly they are known as the imperialistic school of thought. And then finally the reaction to all these school of thoughts is the subaltern school of thought, right, which is sometimes also known as the postmodernist school of thought. And finally some other school of thoughts, although I'll not mention some other school of thought, right, like the feminist school of thought, or the subaltern may be postmodernist or based on certain region, certain caste, certain religion, right? So some other school of thoughts. Events हमारे पास वही सेम है, ठीक है, वही सेम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है. कहाँ से ना सवाल ये उठता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करें. सेम वाज द केस ऑफ जब हमने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करी थी. सवाल वहां पर हमने क्या पूछा था कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की पढ़ाई हम कहां से शुरू करें. सो वहां पर भी हिस्टोग्राफिकल डिबेट थी, राइट, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की अलग अलग अप्रोच थी. सेम विल बी द केस हियर कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हम कहां से करें, कहां से पढ़ना शुरू करें, राइट. सो वी हैव डिवाइडेड इनटू these 4 parts: the 18th century, the first half and the second half, the period of colonialism or the rise of British colonialism, then the rise of Indian nationalism and freedom struggle, and finally the post independence era. And if we divide these into timelines, so from 1707 to 1757, then 1757 to 1813, then 1813 to 1858, then 1858 to 1900s, then 1900s first decade to 1947, and then 1947 onwards, right? So this is the 18th century, the first half, second half. This is colonialism, whole of this is colonialism, and part of this is also nationalism, and then onwards जो है वो आपका क्या जाएगा, post independence. So this we have already, the strategy we have already discussed in the previous session, right? Now few points I have left deliberately in the strategy part because I thought कि हम थोड़ा सा आगे जाकर, because those things they require a great degree of explanation. So अगर हम strategy वाले part में वो explanations अगर मैं देना बैठ जाता, so defeat हो जाता purpose, है ना. So as we will move forward, when we'll pick up in the next session, we'll pick up the first topic, that is the first half of the 18th century, the advent of European and the decline of the Mughal state, right, and the rise of the regional powers. यहाँ पर हमें इसी सेम फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century के लिए ही हमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ जाएगा. कैम्ब्रिज कुछ और कहेगा, नेशनलिस्ट कुछ और कहेंगे, मार्क्सिस्ट कुछ और कहेंगे, सबाल्टर्न कुछ और कहेंगे, नियो कैम्ब्रिज कुछ और कह रहा होगा. सबके अपने अपने वर्जन्स होंगे फॉर द सेम इवेंट्स.
So in this session, in today's session, we'll try to understand that what are these different school of thoughts, right? And what are their subjectivities actually? What is their core, right? किस core पर based है ये पूरे school of thoughts? We'll try to discuss that in today's session, and then as we move forward, बार बार मैं आपको समझाता जाऊंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि ये in this question there is a conflict, right? While writing answer to this question, we'll try to explain the conflict, right? Like for example, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, प्रीवियस सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है, ऑल्दो उनके एक्सप्लेनेशंस अभी हमने नहीं देखे, केवल क्वेश्चंस हमने भर देखे थे, बट एज वी मूव फॉरवर्ड विल ट्राई टू इंक्लूड दीज डिबेट्स, राइट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज द इंपीरियलिस्ट अप्रोच, एंड इंपीरियलिस्ट अप्रोच में भी पहला है द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट और द कैम्ब्रिज पर्सपेक्टिव, राइट? सो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आपको कोट करने के काम आएगी, दैट इज कि भैया हु प्रमोटेड दिस स्कूल ऑफ थॉट? सो प्रमोटेड बाय स्कॉलर्स लाइक J.A. Gallagher, Percival Spear, right? Apart from that, there is another, that is Anil Seal करके है एक और व्यक्ति, right? So these are few prominent names in this school of thought. उसके अलावा Morris D. Morris है, Morrison भी है एक और scholar. These are the few scholars, to name a few, जो कि जुड़े हुए हैं किससे? Cambridge School of Thought. And this school sought to justify British rule in India. They are also known as British apologists, right? So what they tried to do, बहुत ही cunningly उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जो हमने इंडिया में किया है वो गलत नहीं था। जो इंडियंस कहते हैं ना कि भैया आपने कॉलोनियलिज्म फैलाया, आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, आपने भारत को लूटा, आपने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, आपने हमारी हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, आपने फेमिन्स फैला दिए, राइट? आपके यहाँ आने से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऑल दोज थिंग्स, इन सबको उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। पहले डिफाई करने की कोशिश करी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? फिर उन्होंने ब्रिटिश पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि व्हाट वी डिड वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर इट्स डिग्रेडेशन। सो कैन यू सी देयर ऑडेसिटी, राइट? एंड यस, अगर तुम सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज डिस्कार्डेड नाउ। इस स्कूल ऑफ थॉट को अब जो है वो नहीं फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट खुद के जो स्कूल ऑफ थॉट को जो लोग फॉलो कर रहे थे उन्होंने ही इवेंचुअली स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कार्ड कर दिया। एक्चुअली इट इवॉल्व्ड इनटू समथिंग एल्स, लाइक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड ना कि colonialism evolved into neo-colonialism, imperialism evolved into neo-imperialism. Similarly, Cambridge School of Thought evolved into New Cambridge School of Thought. कहना वही चाह रहे हैं, लेकिन एक और अलग तरीके से, थोड़ा सा और प्रिसाइज तरीके से वो कहना चाह रहे हैं, जिसे रिफ्यूट करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाए। विल डिस्कस दैट, बट फर्स्ट लेट अस लुक एट इन डिटेल दैट व्हाट इज दिस कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। सो क्या कहना चाह रहे हैं ये इंडिया के बारे में? सबसे पहला पॉइंट है एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट का, ठीक है, जिस पर सवाल भी बनेगा कि ब्रिटिशर्स ने जो भारत पर जो अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करी, वाज दैट इंटेंडेड और वाज दैट एक्सीडेंटल? सो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है इसमें? द ब्रिटिश डिडंट हैव अ डेलिबरेट स्ट्रेटजी टू कॉन्कर इंडिया, इट हैपेंड मोर बाय एक्सीडेंट, व्हाट दे कॉल्ड अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। Once in power, they claimed to work for the betterment of Indians through their governance. Can you see their audacity? Right? क्या कहना चाह रहे हैं ये? सवाल क्या है? सवाल का जवाब आगे डिटेल में दूंगा, बट हियर जस्ट let us look at their audacity. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं in the upcoming sessions when we will look at the questions. There we'll go into this detail again. But here सवाल ये है कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर जो कब्जा किया वो सोच समझकर किया या वो बाय एक्सीडेंट था? राइट? ये बाय एक्सीडेंट वाला जो फंडा है ना, ये कैम्ब्रिज ने बोला है, राइट? सोच समझकर ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया, ये नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बोलेगा, ठीक है? जब नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने ऐसा, जब कैम्ब्रिज वालों ने ऐसा कहा कि भैया हम आप पर राज नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इवेंचुअली लोगों ने सवाल उठाने शुरू करे कि आप तो राज करने के ही इरादे से आए थे, क्योंकि आप तो शुरू में कह रहे थे हम तो केवल एक ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे आपने तो राज, ब्रिटिश पहले कंपनी राज एंड देन ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश कर दिया, क्राउन राज एस्टेब्लिश कर दिया, तो आप तो राज एस्टेब्लिश करने आए थे, राइट? तो अपोलोजेटिक ये जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, दिस अपोलोजेटिक ब्रिटिश अपोलोजिस्ट, इन्होंने कहा कि नहीं, वी अपोलोजाइज, वी वर नॉट राइट, वी वर एब्सेंट माइंडेड, वी डिड ऑल ऑफ दिस इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, राइट? होता चला गया हमसे तो, ठीक है, हमने मतलब गलती से हो गया ये तो, ठीक है, प्लासी गलती से जीत गए, वहां पर धोखाधड़ी गलती से हो गई, फिर प्लासी के बाद जो हमने लूटपाट मचाई, बक्सर गलती से जीत लिया उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जितने भी हमने चेंजेस किए, इट वाज ऑल अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। और अगर हमने किया भी है, ठीक है, यानी धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया भी है, तो वो आप ही की भलाई के लिए किया हमने, बिकॉज हम वी वर कैरिंग दी व्हाइट बर्डन, हम वो व्हाइट बर्डन लेकर चल रहे थे, हमारे ऊपर वो बोझ था कि दैट वी आर द एलीट्स, बिकॉज ये प्रोपेगेंडा चल रहा था यूरोप में, यूरोसेंट्रिसिज्म में, दैट यूरोपियंस आर समहाउ सुपीरियर स्पीशीज देन द रेस्ट ऑफ द ह्यूमंस, the whites, the Caucasians are somehow superior, right? DNA wise, they are superior than the rest of the species. The Africans, the South Asians, the Southeast Asians, they are genetically inferior to us. And not just genetically inferior, they are civilization based, on the basis of civilization, they are also inferior to us. Right? They lack civilization, they lack political order. ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करी उन्होंने कि इंडिया में जो, जब हम 18th सेंचुरी को पढ़ेंगे ना, 18th सेंचुरी में द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एंड द राइज ऑफ द रीजनल स्टेट एंड व्हाई द रीजनल स्टेट वर नॉट एबल टू रिप्लेस मुगल्स एज अ पैन इंडिया एम्पायर। सो यहां पर कैम्ब्रिज स्कूल कहेगा कि ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है आपकी सोसाइटी में, राइट? आज तक आपके ऊपर केवल फॉरेनर्स ही रूल कर पाए हैं, आप खुद अपने आप पर रूल कर ही नहीं पाते, राइट? आपके ऊपर जब भी किसी ने सक्सेसफुल रूल किया है तो वो फॉरेनर्स द्वारा ही किया गया है, ठीक है? दैट इज द सेकंड पॉइंट, colonialism as foreign rule. So they try to, they outright they denied that there is no such thing as colonialism. देख रहे हैं आप कितना हाई रिगार्ड में रख रहे हैं खुद को? They outright deny that there is no such thing as colonialism. They downplayed the political, social and economic aspects of colonialism, arguing it was merely a case of foreign rule
कंपेरेबल टू अर्लियर फॉरेन पावर्स इन इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स ने आकर रूल किया ना, सो वी वर दी फॉरेन पावर्स, सिंस वी वर दी फॉरेन पावर्स ना, वी वर एबल टू लुक एट फ्रॉम अ आउटसाइड पर्सपेक्टिव, हम इंडिया की प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे थे, राइट। आप इंडियंस जो है वो अपनी आपस में प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं, आप आपस में लड़ रहे हैं, आपकी इनहेरेंट कास्ट की और सोसाइटी में जो क्लासेस डेवलप्ड हैं, सोसाइटी में जो कास्ट है, या जो भी आपके बीच में रिलीजन और रीजन और लैंग्वेज और जितनी भी डिसयूनिटीज हैं आपके बीच में, इन डिसयूनिटीज के चलते जो है वो आप खुद को रूल नहीं कर पा रहे हैं। कोई फॉरनर आता है तो आप पर जो है वो रूल कर जाता है, राइट। इसी को सेम चीज कंपेयर करें जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी गई, आप मुझे बताएंगे किसने लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने बांटा हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया की हिस्ट्री को, जहां पर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स फॉरनर्स ने आकर इंडिया पर जब अटैक किया, फॉरनर्स ने आकर इंडिया पर जो है वो रूल एस्टेब्लिश किया, तब जाकर जो है वो इंडिया में एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो बन सकी, अदरवाइज इंडियंस वर नॉट एबल टू डू दिस। सो व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट एक्चुअली colonialism, राइट, व्हाट वी इज नॉट एक्चुअली colonialism, इट इज एक्चुअली अ फॉरेन रूल, ठीक है, जिसे colonialism के रूप में जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे जो कि है नहीं। कौन एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ी देर में देखते हैं कैम्ब्रिज स्कूल के अकॉर्डिंग। यहां पर एक और पॉइंट है, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि colonialism एक्चुअली है क्या। colonialism is the economic relationship between the metropolitan and the colony, where the colony exists only to serve the purposes of the metropolitan, and as the situations in the or the conditions or the situations in the metropolitan changes, the policies thus followed in the colonies by the agents of the metropolitan also changes, right। So in the second part मैंने आपको बताया था ना, ये जो second part है the British colonial policies में, मर्केंटाइल फेज जब ब्रिटिशर्स में रहा तो ब्रिटेन में रहा तो 1757 से 1813 तक डिफरेंट पॉलिसी जो है वो ब्रिटिशर्स ने या कंपनी ने भारत में फॉलो करी, राइट। इंडस्ट्रियल फेज जब ब्रिटेन में आया तो 1813 से 1858 तक अलग पॉलिसीज जो है वो फॉलो हुई इंडिया में, देयर इज अ शिफ्ट इन पॉलिसी। एंड जब फाइनेंशियल फेज आया तो 1858 ऑनवर्ड्स जो है वो पॉलिसी चेंज होती गई, राइट। और ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाया था, अगर नहीं आपने वर्ल्ड हिस्ट्री फॉलो किया है सो डोंट वरी, दोज हु आर गोइंग टू अटेंड डायरेक्टली द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास, आगे जब हम बढ़ेंगे, जब मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज, फाइनेंशियल फेज, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वहां पर आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स का क्या कहना है, या हमने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था, नॉट ब्रिटिशर्स का कहना, हमने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था कि ब्रिटेन में इकोनॉमिक ये कंडीशंस जो है वो मेट्रोपॉलिटन में है, यानी ब्रिटेन में है, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज दे मेड चेंजेस to their colonies, all of the colonies, not just India, all of their colonies. So they made political changes, they made administrative changes, they made economical changes, they made social changes, they made cultural changes, religion में change करने की कोशिश करी उन्होंने, philosophy में change करने की कोशिश करी, right। And with the progression of these, right, इस तरह जो progression आगे बढ़ रहा है, with the changes happening in the metropolitan, they made all these changes in their colonies too, ठीक है। this we have studied। इसको outright deny कर दिया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, right। so denial of the economic exploitation। The Cambridge School dismissed the theories of drain of wealth, rejecting the view that the British economically exploited India, right। Now for the first point, accidental conquest के लिए रैमसे मेयर है एक स्कॉलर, आप उनको कोट कर सकते हैं, जो कि कहते हैं कि it was a fit of absent mindedness, accidental conquest है, it was not planned। Nationalist scholars कहते हैं कि it was planned as early as the charter was given to the East India Company, तभी से ही ये प्लान हो गया था, ठीक है। नेशनलिस्ट स्कॉलर्स का ये कहना है। देन colonialism as a foreign rule, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल ये कह रहा है कि colonialism जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट, तो व्हाट हैपेंड इन इंडिया वाज द फॉरेन रूल। colonialism जो है वो इज अ कॉन्स्पिरेसी, राइट। एंड नॉट जस्ट colonialism इज अ कॉन्स्पिरेसी, दे आल्सो डिनाई नेशनलिज्म टू। दे से नेशनलिज्म इज आल्सो अ कॉन्स्पिरेसी, इट इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। There was no such thing as nationalism or a national movement or a freedom struggle. Sorry, there was freedom struggle, but there was no such thing as a national movement, and there was no freedom struggle on the basis of a national movement. Rather हम इस तरह कहें तो ज़्यादा accurate रहेगा। They are outright denying that there is such thing as a drain of wealth, right? Morris de Morris हैं, वो कहते हैं कि Morrison कहते हैं कि there was no such thing as a drain of wealth, right? Denial of Indian nationalism. According to them, India lacked the social and political unity required for nationalism, being too divided by caste, region and religion. देखिए, they are denying nationalism on this line. Let us read these statements, फिर मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। So they are saying कि it was a foreign rule and it was beneficial for India. हमने आपकी बेनिफिट के लिए ये फॉरेन रूल एस्टेब्लिश किया है, राइट। एंड कंपेयरिंग टू दी अर्ली फॉरेन रूल्स जो आप भारत में रहे हैं, उनसे तो हमने बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए। वो कह रहे हैं कि भैया हमने आपकी कॉटेज, जैसे मॉरिसन कहते हैं कि दैट देयर वाज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो मॉरिस डी मॉरिस ये कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कहने का मतलब क्या है। ड्रेन ऑफ वेल्थ कब हुआ, उससे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ,
अब आई गेस आपके दिमाग में ये सीक्वेंस जो है वो एंटर नहीं कर रहा होगा कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ है, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया कॉन्सेप्ट। अभी फॉर अ फैक्ट आप ध्यान में रखें, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि भारत से वेल्थ जो है वो धीरे धीरे ब्रिटेन में जा रही है, ठीक है। तो मॉरिसन कहते हैं कि देयर वाज नो ड्रेन ऑफ वेल्थ बिकॉज मॉरिस डी मॉरिस कहते हैं उससे पहले कि देयर वाज नो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। क्यों नहीं है डीइंडस्ट्रियलाइजेशन? बिकॉज हमने तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी, हमने तो नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी इंडियंस के लिए। हम मशीनें लेकर आए, हम बेटर कैश क्रॉप्स को लेकर आए, हम बेटर यील्डिंग क्रॉप्स को लेकर आए, हम बेटर टेक्नोलॉजीज को लेकर आए फॉर वीविंग, फॉर प्रिंटिंग ऑल्सो, राइट। या प्रिंटिंग छोड़ दीजिए, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, राइट। खासतौर पर अगर आप पेनिजुलर इंडिया को देखें, वेस्टर्न साइड कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री जो है, ठीक है। सो हमने आपको धागा दिया, मशीनी धागा, ठीक है। हमने आपको बेटर कपड़े जो है वो प्रोवाइड करे। बेटर कपड़े हमने आपको क्यों प्रोवाइड करे? आप कैसे कह सकते हैं कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन है? कैम्ब्रिज स्कूल कह रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं ना कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम कह रहे हैं डीइंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत जो है वो ज्यादा हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी, और आपकी ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो उस डिमांड को सप्लाई नहीं कर पा रही थी, तब जाके ब्रिटेन से आकर हमने सामान जो है वो बेचा है, ठीक है। वो डिनाई करते हैं कि हमने डीइंडस्ट्रियलाइज किया ही नहीं आपके इंडस्ट्रीज को, ठीक है। वो डिनाई करते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था इंडिया में, राइट। वो कह रहे थे कि क्योंकि आपका देश इतना ज्यादा बटा हुआ है ना, यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म पर वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे इंडियन नेशनलिज्म की। लाइक यूरोप में ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच नेशनलिज्म डेवलप हुआ, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर इवेंचुअली ब्रिटिश नेशनलिज्म डेवलप हुआ, ठीक है। ऑल्दो स्कॉटिश और आयरिश जो है वो लोग या वेल्श लोग जो है वो परेशान है इस चीज से, रहे भी हैं और है भी, कॉन्फ्लिक्ट है, चल रहा है। Nevertheless, somehow it worked for Britishers also. Same was the case of France, same was the case of Germany, same was the case of Italy, same was the case of Spain and Balkan countries also, right? So जो नेशनलिज्म या नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट यूरोप में है, उसको उठाकर भारत पर जब वो लगाते हैं तो वो कहते हैं कि भारत इतना ज्यादा डाइवर्स है, थोड़ी थोड़ी दूरी में तो भाषाएं चेंज हो जा रही हैं, पहनावा चेंज हो जा रहा है, रिलीजन चेंज हो जा रहा है, कस्टम्स चेंज हो जा रहे हैं, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट जोग्राफिकल या फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं भारत में। सो इंडिया इज नेवर बीन वन नेशन, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट नेशंस इन इंडिया। तो कैसे एक पैन इंडियन नेशनलिज्म हो गया इंडिया में? है ही नहीं पैन इंडियन नेशनलिज्म इंडिया में। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे डिफेंड किया? तो उन्होंने 4 पॉइंट दिए। पहले उन्होंने कहा कि कॉलोनियल, पहले तो उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटल रूल है, इट वाज अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। सेकंड उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट कॉलोनियलिज्म बट इट वाज अ फॉरेन रूल, कॉलोनियलिज्म नहीं था, राइट। ये फॉरेन रूल था, हमने कॉलोनी नहीं एस्टेब्लिश करी, हमने कोई जानबूझकर आपको लूटने के लिए यहां पर सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं किया है। हम तो एक फॉरेन पावर है जो कि आप पर आकर रूल कर दे रहे हैं। वो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से फॉरेन पावर्स बार बार आप पर आकर रूल करती हैं, और एग्जांपल देते हैं बार बार मुस्लिम शक्तियों का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि भैया देयर वाज नो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वी एक्चुअली गेव यू बेटर टेक्नोलॉजीज, वी गेव यू railways, we gave you telegraph, we eventually gave you telephone, electricity, education, we gave you western thoughts, western sciences हमने promote करी, western literature, western media, western entertainment, all thing western we have provided you in order to make you more civilized, right? उसके बदले में अगर हमने थोड़ा बहुत पैसा ले लिया, so that doesn't constitutes as drain of wealth, that doesn't constitutes as deindustrialization, because we provide you alternatives to your dwindling industries, because your industries were already dwindling and we provided you an alternative to your dwindling industries. That was their audacity, right? Then lastly they said that there was no Indian nationalism, right? Because India is too much, there is no political unity, social and political unity, right? And there is too much disintegrity, or there is too much diversity to have a pan-Indian nationalistic identity. So in 4 points पर उन्होंने जो है वो refute कर दिया कि that there was no colonialism, there was no nationalism, there was no deindustrialization and drain of wealth. We had the white burden, we were carrying the white burden, we came to India as foreign rule, foreign power, we first traded and then it was only a fit of, क्या कहा उन्होंने, देखिए, it was only a fit of absent mindedness that we gradually ruled over you, and that is why because Indians are habitual to be ruled by foreign powers, it is only the foreign powers that can rule India. ये ऑडेसिटी थी उनकी, राइट। और कैसे उन्होंने फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया, नेशनलिज्म क्यों नहीं है, क्या एलीट सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन दिया, द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ नेशनलिज्म, दे सेड दैट स्केप्टिसिज्म अबाउट इंडियन नेशनहुड, these scholars questioned the very idea of India being a unified nation. They said India कोई नेशन है ही नहीं, इंडिया तो क्या है, एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, राइट। वही सेम कॉन्सेप्ट, लाइक मैंने आपको पहले बोला ना कि 8th-9th सेंचुरी में द टर्म हिंदू वाज यूज्ड, राइट। और हिंद नदी के पार वाले रहने वाले लोगों को, इस एरिया में रहने वाले लोग, राइट, द अफगानीज, द तुर्कीज एंड द फारसीज, हिंद नदी के पार रहने वाले लोगों को, राइट, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। सो अगर मैं थोड़ा सा बेटर मैप बनाऊं, सो इट्स अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, right? So if this is Indus River, so the people residing in this region, right, वो स को ह पढ़ते हैं, especially Farsis and region influenced by Persian language, right? So जिस रिवर को हम सिंधु कहते हैं, उस रिवर को वो हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है। So यहाँ पर Greeks and Romans came to know about people living around and beyond the region of Sindh river,
एज हिंदू पीपल, एंड अपनी भाषा में उन्होंने इसको कहा इंडिका, और सॉरी इंडियन पीपल, और इंडिया का या इंडुस का, इंडुस रिवर, एंड देन इंडिया एंड इंडियन पीपल, राइट. सो इट इज मियरली अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट करेक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जब तक हम इसको स्ट्रिक्टली ज्योग्राफिकल फीचर की सेंस में देखें. लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट एक कदम और आगे निकल जाता है. वो ये कहता है कि इंडिया जो मॉडर्न सेंस में हम इंडिया देख रहे हैं ना, दिस इज साउथ एशिया ना, साउथ एशिया में कोई इंडिया जैसी एंटिटी है ही नहीं, पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है इंडिया, कोई एक यूनिफाइड नेशन नहीं है, राइट. क्यों? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो सभी जो है वो एक दूसरे से लड़कर जीतना चाहती हैं, और अगर कोई एक बड़ी पैन इंडिया स्टेट बनती भी है तो वो केवल फॉरेन रूल्स के वजह से बनी है. और वो एग्जांपल देते हैं किसका? मुस्लिम पावर्स का, कि मुस्लिम पावर्स भारत आई एंड दे फॉर्म्ड अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ओवर इंडिया, और वो भी पूरी तरह इंडिया को नहीं जीत पाए, तो एक इंडिया एज अ नेशन नहीं है. तो हम इस पॉइंट को कैसे रिफ्यूट करते हैं कि चलो पॉलिटिकली इंडिया जो है वो बहुत बाद में, या हिस्टोरिकली बहुत कम बार पॉलिटिकली साउथ एशिया जो है वो यूनिफाई हो सका है, राइट. मेजॉरिटी ऑफ इट वाज डन बाय अशोका, देन गुप्तास, एंड देन हर्षवर्धन वाज नॉट एबल टू कॉन्कर बियॉन्ड सेंट्रल इंडिया, राइट. देन came the time of Delhi Sultanate, so it was Alauddin Khalji, or Khalji is also able to control the northern India, right, plains. Tughlaqs tried to conquer the Deccan area, but they failed, and then Mughals also tried to conquer the Deccan area, and Aurangzeb miserably failed in that venture too. So historically speaking, yes, we cannot deny this point कि politically India जो है वो ये South Asia पूरी तरह unified नहीं रहा है. But what about culturally? What about socially? Right? Socially तो India जो है वो unified है. There is a cultural unity, और cultural आप कह सकते हैं कि synchronity है, ठीक है, जुड़े हुए हैं, सिंक्रोनस है कल्चर्स, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट इंडिया में, राइट. सो बट कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट सुनने को राजी नहीं है सब कुछ. वो कह रहे हैं कि भैया कोई है नहीं, देयर इज नो आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग अ यूनिफाइड नेशन, इट इज ब्रिटिशर्स. हमने जो है वो आपको एक सॉलिड स्टेट बना कर दिया है, यूनिफाइड इंडिया बना कर दिया है, ठीक है, पहली चीज. सो नेशनलिज्म कैसे आ गया आपके अंदर जब कोई नेशन था ही नहीं कभी? इट इज अ नेशन, इट वाज नॉट अ नेशन बट मेनी डिफरेंट नेशंस बेस्ड ऑन डिफरेंट एथनिसिटीज, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट अब कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि व्हाट नेशनलिस्ट कॉल्ड नेशनलिज्म is nothing but a elite driven movement. They argued that the national movement was not a mass awakening but a tool invented by a few Indian elites to serve their personal ambitions. ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं? ऑडेसिटी देखिए उनकी. ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंडिया में प्रोवाइड करी, राइट. और बदलते समय के साथ जो इंडियन एलिट्स हैं, जो पैसेदार मालदार जो लोग हैं, उनको ये समझ आने लगा कि इन कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज का फायदा जो है वो हमें उठाना चाहिए. ट्रेडिशनल तरीके छोड़कर नई जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज ब्रिटिश लेकर आए हैं उनका फायदा हमें उठाना चाहिए. और उनका फायदा वो कैसे उठा सकते हैं? जब उनके साथ जो है वो, यानी कि पॉलिसी को वो अपने हिसाब से ड्राइव करें. पॉलिसी को अपने हिसाब से ड्राइव करने के लिए उनको ब्रिटिशर्स पर प्रेशर डालना पड़ेगा. अकेले वो ब्रिटिशर्स पर प्रेशर डाल नहीं सकते. मिलिटरली डालकर देख लिया एलिट्स ने, बहुत धोया ब्रिटिशर्स ने. तो ऐसे में कैसे वो ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे? तो वो क्या करेंगे? तो इंडियन एलिट्स ने क्या किया? दे फॉर्म्ड देयर ओन फॉलोइंग, राइट. अपने लिए वो एक फॉलोअर्स की क्लास उन्होंने इकट्ठा करी. उन फॉलोअर्स को उन्होंने जोड़ा और खुद को प्रोक्लेम किया नेता अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए, ताकि वो क्या कर सकें? ब्रिटिशर्स ने जो नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं उसका बेनिफिट उठा सकें, राइट. एंड देयर वाज नो नेशनलिज्म इन दिस. दिस वाज प्योर ग्रीड ऑफ फ्यू इंडियन एलिट्स, राइट. This is how they constructed nationalism. According to them, Indian elites imagined colonialism and then created nationalism as a reactionary force. Right? कैम्ब्रिज स्कूल क्या कह रहा है कि colonialism तो एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, हम तो आपको बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर स्टेट हमने दी है. ये तो फॉरेन रूल है जो कि एक बेटर स्टेट लेकर आया, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया, बेटर इकोनॉमी लेकर आया, बेटर सोसाइटी लेकर आया, नई टेक्नोलॉजी लेकर आया. और इसको कुछ फ्यू इंडियन एलिट्स जो है वो कॉलोनियलिज्म का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इस बेटर स्टेट से जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई हैं उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं, और वो डायरेक्टली फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो अपने साथ भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो कंपेल कर सकें ब्रिटिशर्स को फायदा देने के लिए, राइट. सो नेशनलिज्म इज नथिंग बट अ रिएक्शनरी फोर्स. सॉरी, नेशनलिज्म इज क्रिएटेड एज अ रिएक्शनरी फोर्स, राइट, अगेंस्ट अ इमेजिन्ड प्रॉब्लम नोन एज कॉलोनियलिज्म व्हिच वाज एक्चुअली अ फॉरेन रूल. सो फॉरेन रूल के अगेंस्ट एक रिएक्शनरी फोर्स क्रिएट करी है कैम्ब्रिज स्कूल के अकॉर्डिंग. जबकि नेशनलिस्ट का क्या कहना है कि भैया कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट नेशनलिज्म खड़ा हुआ. इनिशियली द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी वाज बिटवीन द कैम्ब्रिज स्कूल एंड द नेशनलिस्ट स्कूल. कैम्ब्रिज कह रहा है कि देयर वाज अ फॉरेन रूल एंड इट क्रिएटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. उसके रिएक्शन में जो है वो एक रिएक्शनरी फोर्स खड़ी होती है. जबकि नेशनलिस्ट स्कूल क्या कहता है कि नहीं, देयर वाज कॉलोनियलिज्म, जिसके रिएक्शन में नेशनलिज्म खड़ा हुआ, राइट. नाउ दिस रिएक्शनरी फोर्स गेव राइज टू अ पेट्रन क्लाइंट मॉडल. Right, the movement was explained through this sociological lens, where regional elites, the patrons, built a support base clients through economic and political influence. So, in order to gain benefit from the economic opportunities created by our foreign rule, the regional elites, that is the patrons, right, through economic and political influence, they created a huge clientele for themselves, which they called their followers, right, and they termed this a national movement, right. And then there was competition among elites, because किसी एक रीजन में elites तो नहीं खड़े हो रहे ना ऐसे.
सो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि नाउ डिफरेंट रीजन में इंडिया के इस तरह के कई सारे जो है वो रीजनल एलिट्स पेटर्न्स उठ के खड़े होते हैं और उनके साथ जो है वो कई सारी फॉलोइंग है जो कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ रही है, ठीक है, सपोज्ड कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ रही है। बेसिकली वो हमारे द्वारा एस्टैब्लिश किए गए नए इकोनॉमिक ऑर्डर का बेनिफिट जो है वो चाहते हैं, ठीक है, अपने लिए बेनिफिट चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपने पास फॉलोइंग फोर्सेस इकट्ठा कर लिए और ऐसा इंडिया के हर रीजन में हो रहा है। और इससे हुआ क्या, राइट? नाउ ब्रिटिश रूल ओपनड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोमोटिंग राइवलरीज अमंग इंडियन एलिट्स सीकिंग कंट्रोल ओवर न्यू रिसोर्सेज एंड पोजीशंस, because British opened economic opportunities not in the field of business but also in the form of government positions too, powerful government positions for Indians, few of them, right? So Indian elites में competition बढ़ गया उनके लिए। तो जब ये competition Indian elites में इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे की वो टांगे लग पड़े खींचने, तो इन Indian elites को, जिनको आप सिनोनिमस रख सकते हैं इंडियन बुर्जुआ या इंडियन कैपिटलिस्ट के हिसाब से भी, ठीक है, आल्दो कैपिटलिस्ट क्लास कहना जो है वो एट दिस टाइम ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो बिजनेसमैन भी होंगे, कुछ बड़े बड़े जमींदार, कुछ राजा महाराजा लोग, कुछ बड़े साहूकार, बड़े बिजनेसमैन, राइट? सो कैपिटलिज्म तो था ही इंडिया में, आल्दो कैम्ब्रिज स्कूल एक्नॉलेज नहीं करता है कि इंडिया में कैपिटलिज्म नहीं था, बट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग लेट अस कॉल देम कैपिटलिस्ट, इंडियन कैपिटलिस्ट है, राइट? अब वो इंडियन कैपिटलिस्ट जो है वो ब्रिटिश द्वारा क्रिएट की गई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो ऐसे में एक और नई क्लास खड़ी होती है, एक नई क्लास ऑफ ब्रोकर्स खड़ी होती है जो कि इन रीजनल कैपिटलिस्ट को एक साथ लेकर आती है ताकि एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर सकें और यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट उठा सकें सिचुएशन का। और वो जो नई क्लास ऑफ ब्रोकर्स जो बनी वो थे ये नेशनल लेवल के लीडर्स, और सिंपली स्पीकिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर नेशनल लेवल लीडर्स, नॉट जस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, अदर नेशनल लेवल लीडर्स। सो नेशनल लेवल लीडर्स फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल अदर टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो राइज किए during this time, right? They were actually brokers and they were brokering deals among these Indian regional elites who were in constant conflict with each other, who were competing for these opened economic opportunities, right? So इस तरह उन्होंने नेशनलिज्म को एक्सप्लेन किया। कोई नेशनलिज्म फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था, ठीक है? इंडियन एलिट्स थे, वो ब्रिटिश इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते थे, खुद में आपस में लड़ रहे थे, ब्रोकर क्लास डेवलप हुई, उनको साथ में लेकर आए, उन्होंने अपने साथ मासिस को जोड़ा। अब नाउ ब्रिटिशर्स पर वो प्रेशर डाल रहे हैं ये बोलकर कि तुम कॉलोनाइजेशन कर रहे हो हमारा, हमें आजादी दो ताकि हम कॉलोनाइजेशन करें अपने लोगों का, राइट? ना कि कॉलोनाइजेशन करें अपने लोगों का, ताकि हम रूल प्रोवाइड करें अपने लोगों को, हम होम रूल दें अपने लोगों को, स्वराज दें, पूर्ण स्वराज दें। So this resulted in formation of a regional power blocks. Some elites became local brokers, establishing themselves as influential figures with loyal followers. That resulted into a need for national coordination. The growth of multiple regional power centers led to the formation of all India patrons to coordinate interests. So from South India, from United Province, from Bengal, from Bombay Presidency, right, from Madras Presidency, from Punjab region, कई जो है वो रीजनल लेवल लीडर्स उठकर आते हैं और नेशनल लेवल पर कोऑपरेट करते हैं फिर एक दूसरे के साथ। तब जाकर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है जो कि इंडियन एलिट्स को सपोर्ट कर रही है, राइट? यानी कि इंडियन कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही है, कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट कर रही है, इंडियन एलिट्स को सपोर्ट कर रही है, नॉट जस्ट कैपिटलिस्ट बट इंडियन एलिट्स को सपोर्ट कर रही है, राइट? और अपने साथ उन्होंने जोड़े हुए हैं मासेस। दैट इज इंडियन नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज स्कूल, राइट? सो नेशनलिज्म एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एलिट इंटरेस्ट। नाउ अभी ना मैं थोड़ा सा ना डिटेल में जाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको कन्विंसिंग लग भी रहा होगा ये, और ये लगता है मोर कन्विंसिंग जब आप नियो कैम्ब्रिज स्कूल को पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए इसका अगेंस्ट, इसके काउंटर में जब नेशनलिस्ट स्कूल के पॉइंट आपको दूंगा तो आपको ये पॉइंट सारे सेटेड नजर आएंगे। सो नेशनलिज्म इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एलीट इंटरेस्ट। इन दिस फ्रेमवर्क इंडियन नेशनलिज्म वाजंट अ पीपल मूवमेंट बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फिश एलीट मोटिव्स, right? Later rejected by scholars. Interestingly, even those who originally promoted this model eventually moved away from it because इसके काउंटर में जो nationalist school of thought and then जो Marxist school of thought आया, they provided solid evidences which refuted all these assumptions of Cambridge school of thought. But then Marxists के eventually gradually Marxists के रिएक्शन में जो नियो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट आया उसे रिफ्यूट करना मार्क्सिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया, राइट? सो न्यू कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट पढ़ने से पहले लेट अस लुक एट द नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट।